Hi, welcome online classes. Dear student, last online lecture we discussed about minerals, their types of minerals, like for example metallic, non-metallic, renewable, non-renewable. Last lecture we discussed copper. Today we discuss about bauxite. Bauxite is an ore of aluminium. Aluminium is a light metal and is a good conductor of heat and electricity. It is used for making the utensils, spare parts of automobiles, aeroplanes, and in the shipbuilding industry. It is also used in electrical equipment industry and for transmitting electricity. It can be made stronger by mixing it with other metals to form alloy. Duraluminum is an important alloy of aluminium. बॉक्साइड एक एल्यूमिनियम का पार्ट है. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में, स्पेयर पार्ट, एरोप्लेन के पार्ट, बिल्डिंग इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम और बॉक्साइड का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है. एक साधन संपत्ति है, नेचुरल रिसोर्सेस है और ह्यूमन बीइंग अपनी डेवलपमेंट के लिए डे बाय डे इन नेचुरल रिसोर्सेस का यूज़ कर रहा है. हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ बॉक्साइड इन द वर्ल्ड में कहाँ पे अवेलेबल है. ऑस्ट्रेलिया, ग्यूना, ब्राज़ील, द सुरिनाम, Russia and France are the major producer of bauxite in the world. Australia is the largest producer of bauxite in the world. ऑस्ट्रेलिया कंट्री बॉक्साइड में पूरे विश्व में नंबर 1 कंट्री है. डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ बॉक्साइड इन इंडिया. ओडिशा, गुजरात, झारखंड and Maharashtra are the major producer of bauxite in India. Odisha, the Kalandhi, Koraput, Sundargarh, Balangir and the Sambalpur districts are the major producer of bauxite. The mineral is also produced in the Nilgiri, Coimbatore and Salem districts of Tamil Nadu. महाराष्ट्र में, झारखंड एंड तमिलनाडु, ओडिशा ये स्टेट में सबसे ज़्यादा बॉक्साइड मिनरल अवेलेबल है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट मिनरल गोल्ड. गोल्ड द प्रॉपर्टीज मेक इट वन ऑफ द मोस्ट कवर्ड मेटल इन द वर्ल्ड. गोल्ड मतलब सोना. These natural resources is very valuable natural resources in overall the world. Gold is used in manufacture coin, medal, jewelry, etc. Because of its usefulness and diverse properties, it remained as a medium of exchange for a long period of time. China, Australia, Russia, USA is the major producer of gold in the world. Karnataka, Andhra Pradesh are the major producer of gold in India. गोल्ड ये नेचुरल रिसोर्सेस और ऑल वर्ल्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है. क्यों? क्योंकि ज्वेलरी में, मेडल्स बनाने के लिए एंड मैन्युफैक्चर कॉइन के लिए ये नेचुरल रिसोर्सेस का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. सो गोल्ड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस मिनरल्स इन द वर्ल्ड. हमारे भारत में भी, इंडिया में तो सबसे ज़्यादा गोल्ड फेमस है क्योंकि ज्वेलरी इंडिया के लोगों को बहुत पसंद है, स्पेशली लेडीज़ को. अंडरस्टूड. कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में, हमारे महाराष्ट्र में भी कुछ जगह पे गोल्ड अवेलेबल था, लेकिन टुडे अभी आज अवेलेबल नहीं है. कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में अवेलेबल है. चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, यूएसए में, ओवरऑल वर्ल्ड में ये गोल्ड रिसोर्सेस अवेलेबल है. नेक्स्ट मिनरल सिल्वर मतलब चांदी. Silver is another the precious metal produced in India. It is valued next only to gold for making the ornaments due to its softness and the attractive white color. सिल्वर वाइट कलर से ओवरऑल वर्ल्ड में ज़्यादा परिचित है
और नेक्स्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेस मतलब गोल्ड के बाद सिल्वर का यूज ज़्यादा करते हैं. इट हैड बीन an important currency metal in the several parts of the world. It is also used in the manufacture of chemicals, then electroplating, photography, and for the coloring glass. सिल्वर मिनरल बहुत इम्पॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फोटो इंडस्ट्री एंड द कलर पेंटिंग एंड केमिकल इंडस्ट्री overall world. But the India is most useful in silver minerals, photography, electroprinting, chemicals and jewelry. These industries are very useful in silver. Mexico is the leading producer of silver, followed by China and Russia. ये सिल्वर मिनरल मेक्सिको में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है. झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन इंडिया. इंडिया में भी अवेलेबल है. झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में सिल्वर मिनरल अवेलेबल है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट मिनरल माइका. माइका इज ए नॉन मेटालिक मिनरल. India is the largest producer of mica and it's produce more than 60% of the world mica. Mica means अभ्रक. हमारा भारत इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है माइका. 60% प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में माइका का हमारा इंडिया करती. हमने देखा कोल, नेचुरल ऑयल, नेचुरल रिसोर्सेस, कॉपर, बॉक्साइड, गोल्ड, सिल्वर. कौन से भी मिनरल में हमारा इंडिया का नंबर 1 नहीं है, लेकिन माइका, अभ्रक, दिस रिसोर्सेस इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड. सबसे ज़्यादा इंडिया में अवेलेबल है माइका रिसोर्सेस. मेन प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ माइका. इट इज़ मेड ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स. इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स. It can be black, green, red, yellow or brown. It has an excellent dielectric strength, the insulating properties and high resistance. Due to all these properties, it is one of the most indispensable mineral used in electric and electronic industries. मतलब हमारे सबके घर में प्रेस है, मतलब इस्त्री. ये प्रेस में यूज़ करते हैं अभ्रक. इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं. कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स. बहुत सारे थिन शीट्स बनाने के लिए ये माइका रिसोर्सेस मिनरल का यूज़ करते हैं. अंडरस्टूड एवरीवन. प्रोडक्शन. चाइना, यूएसए, साउथ कोरिया आर द लीडिंग माइका प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड. इंडिया के बाद चाइना, यूएसए, साउथ कोरिया में इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन अवेलेबल है. इन इंडिया mica deposits are found in Rajasthan. Andhra Pradesh is also an important producer in the country. इंडिया में ये मिनरल माइका मिनरल आंध्र प्रदेश और राजस्थान में अवेलेबल है, अंडरग्राउंड में अवेलेबल है. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्सेस, मैग्नीज. मैग्नीज is an important mineral which is used for making iron and steel. It is also a basic raw material for manufacturing its alloy. It increases the strength of steel. It is also used for making paints, glass, chemicals, etc. मैग्नीज मिनरल स्टील में आयरन ओन में मिक्स करते हैं. जब स्टील की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए ये मैग्नीज का यूज़ आयरन ओन में करते हैं, स्टील इंडस्ट्री में करते हैं. पेंटिंग इंडस्ट्री में, ग्लास और केमिकल्स फैक्ट्री में ये मैग्नीज मिनरल का नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं. साउथ अफ्रीका is the largest producer of manganese. China, Australia, etc. These are the other manganese producing country. India is also one of the leading producer of manganese. Manganese of India is of high quality and is in a great demand.
जापान इज द लीडिंग इम्पोर्टर ऑफ इंडियाज मैग्नीज। हमारे इंडिया से जापान सबसे ज़्यादा मैग्नीज इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट मतलब हमारे इंडिया से वो लेते हैं सबसे ज़्यादा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। हमारे भारत में, इंडिया में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटका में ये मैग्नीज अवेलेबल है। ओडिशा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। इट अकाउंटेड फॉर 1/3 ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा ओडिशा में ये मैग्नीज मिनरल अवेलेबल है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट, बॉक्साइड और एल्यूमिनियम। Bauxite is the main ore of aluminium. Bauxite deposits are formed by the decomposition of rock rich in aluminium silicates. सेम थिंग, हमने जैसा बॉक्साइड ये रिसोर्सेज देखा है, उसी टाइप का एल्यूमिनियम एक नेचुरल रिसोर्सेज है। यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज़ अ वेरी लाइट एट स्ट्रॉन्ग मेटल विथ मेनी यूज़। किस प्रकार के लिए एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं? एक स्ट्रॉन्ग मिनरल है, नेचुरल रिसोर्सेस है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पोट्स एंड पैन्स बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एल्यूमिनियम also conduct electricity, so it is used to make electrical wires. एल्यूमिनियम का यूज़ वायर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में करते हैं। हमने केबल देखी है, ये केबल्स वायर में जो भी कुछ मिनरल्स है, ये मिनरल्स है एल्यूमिनियम, क्योंकि इलेक्ट्रिक सप्लाई पास करने के लिए ये मिनरल्स बहुत अच्छा काम करता है, वर्क करता है। ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज़ of malleability, it is also used to make can and foils. Aluminium is light and strong. It is widely used in the aeroplane and the spacecraft. Aluminium का यूज़ एरोप्लेन में, एरोप्लेन इंडस्ट्री में ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि द लाइट वेटेड मेटल्स, एल्यूमिनियम का वेट, वज़न कैसा है? लाइट वेटेड है। और एल्यूमिनियम इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो दैट्स वाई these minerals used in electric industry and aeroplane industry. Australia, China, Brazil are some major producer of aluminium. India is the largest producer of bauxite in South Asia. Odisha, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Maharashtra states are the leading producer of bauxite और aluminium. हमारे भारत में भी ये मिनरल्स मतलब एल्यूमिनियम अवेलेबल है, लेकिन उनकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ये हमारे भारत में हमें दिखाई देता है। इसीलिए हम साउथ एशियन जो कंट्री है वो कंट्री से लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मिनरल लाइमस्टोन। Limestone is associated with rock composed of either calcium carbonate or magnesium or mixtures or these two. It is found in sedimentary rocks. It is used for a variety of purpose. Limestone मतलब एक रॉक का पार्ट है और अवेलेबिलिटी है मैग्नीशियम, मैग्नीज, देन मिक्सचर्स ऑफ अदर रिसोर्सेस। ये हमें ये लाइमस्टोन रिसोर्सेस में दिखाई देते हैं। इट इज़ अ बेसिक इनपुट इन सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन का यूज़ ज़्यादा करते हैं। इट इज़ यूज द एग्रीगेट और बेस फॉर रोड्स एंड द फाउंडेशन। रोड इंडस्ट्री, देन रेलवे ट्रैक, देन सीमेंट इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री में ये लाइमस्टोन मिनरल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू रिमूव द इम्पोर्ट्स फ्रॉम द मोल्टेन आयरन। देन आयरन इंडस्ट्री में भी लाइमस्टोन रिसोर्सेस यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ
the Portland cement. It is used and the aggregate in the concrete. It is used as a construction stone in buildings. Stone buildings and infrastructure, the आर्किटेक्ट डेवलपमेंट में लाइमस्टोन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं. डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लाइमस्टोन. चाइना इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लाइमस्टोन फॉलोड बाय यूएसए, रशिया एंड जापान. चाइना, यूएसए, रशिया एंड जापान, ये कंट्री में ये रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल है. मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु एंड गुजरात आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ लाइमस्टोन इन इंडिया. हमारे भारत में भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु में लाइमस्टोन रिसोर्सेज अवेलेबल है. ओके स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट ऑन दी चैप्टर, द कंजर्वेशंस ऑफ मिनरल्स. कंजर्व मतलब सेव. हमें ये नेचुरल रिसोर्सेज मिनरल कैसे कंजर्व करने हैं, क्यों बचाने हैं? क्योंकि ये हमारे आने वाले भविष्य में ह्यूमन बीइंग को, हमारे पूरे पॉपुलेशन को एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है. वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट हाउ आवर लाइफ इज डिपेंडेड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स. अगर ये मिनरल्स अवेलेबल रहेंगे तो हम हमारी मॉडर्न जनरेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं. अगर ये मिनरल्स, ये नेचुरल रिसोर्सेज हमारे अंडरग्राउंड में अवेलेबल है, ये अगर ख़त्म हो गए तो हम आने वाले दिनों में हमारी जो भी कुछ डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, देन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये कुछ भी नहीं कर सकते. इसीलिए हमें ये बचा के रखना है, सेव करना है. कंजर्व्स ऑफ मिनरल्स. द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल्स डिपॉजिट इज वेरी स्मॉल, ओनली 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट. हमारे अर्थ के क्रस्ट में ओनली 1% ही मिनरल अवेलेबल है. इसलिए हमें ये मिनरल्स का यूज़ स्लोली करना है. वी आर द रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल्स रिसोर्सेज दैट रिक्वायर्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी क्रिएटेड एंड द कॉन्सेंट्रेट. बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं ये मिनरल्स डेवलप होने के लिए, लेकिन आज हम ये मिनरल्स को बहुत जल्दबाजी में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. तो इसीलिए हमें ये कंजर्व करना है, बचा के रखना है. मिनरल्स रिसोर्सेज आर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल मतलब अगर हम ये मिनरल्स को एक बार यूज़ करेंगे तो वो दोबारा डेवलप नहीं होगी. इट इज़ कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल. वी कैन यूज़ इन वन टाइम, दे फॉर गॉन, वो चले जाएंगे, डेवलप नहीं होगी. Over utilization of minerals also lead to problems of pollution because use of mineral resources like coal, mineral oil release the harmful gases. ये minerals को अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस एंड नेचुरल ऑयल, इनको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या हो सकता है? पोल्यूशन बढ़ेगा. क्योंकि व्हीकल्स, देन फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ये क्या कर रहे हैं? हार्मफुल गैसेस, एक्स्ट्रा हार्मफुल गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में इंक्रीज कर रहे हैं, पोल्यूटेड कर रहे हैं. सो दैट्स वाई द कंजर्व द मिनरल्स. कंटिन्यू द एक्सट्रैक्शंस ऑफ ओर्स लीड्स टू इंक्रीजिंग कॉस्ट एज मिनरल एक्सट्रैक्शंस come from the greater depth along with decrease in quality. A concerted effort has to be made in order to use our mineral resources in a planned and sustainable manner. अगर ये नेचुरल रिसोर्सेज को एक प्लानिंग से हम लोग सब यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन भी कम होगा और उनकी प्राइस भी मेंटेन रहेगी. वी नीड टू यूज़ इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी to extract and use minerals. We need to reduce the wastage of minerals. मिनरल्स का, नेचुरल रिसोर्सेज का जो भी कुछ वेस्टेज मटेरियल है, ये वेस्टेज मटेरियल भी कम हो जाएगा हम अगर कंजर्व करेंगे तो. रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स यूजिंग स्क्रैप्स, मेटल्स एंड अदर सबसिस्टेंस आर स्टेप्स इन द कंजर्विंग आवर मिनरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर्स. अगर हम रिसाइकल करेंगे, ये मिनरल का यूज़ हम अच्छी तरह से करेंगे तो ये मिनरल्स हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए
बहुत important होगा. So dear student, today we discuss about minerals. There are some important points on this chapter. For example, bauxite, gold, silver, mica, manganese, aluminium, limestone, and most important point, conservations of minerals. So I thought that you all understood in this chapter some difficulties on this lesson, because this lesson is very big. Actually, minerals, this topic is a very vast topic. As per as concerned in the ICSE 10th standard syllabus, we once again teach in the actual school starting as per as concerned in 9th and 10th standard. But today myself teach to the my knowledge base. I proud you, because all the student understood in each and every point, but there is some difficulties. You can contact in my personal mobile number. Okay, thank you. Next online lecture we discuss about question answer in this lesson. Take care.